میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے اور روزوں کا مہینہ مبارک ہو۔ تو آج میں آپ کے سامنے صرف یسایہ نبی کے روزے کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ روزے تو بائبل مقدس میں بہت نبیوں نے رکھے، لیکن میں ایک ہی روزے کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے روزے کے معیار کا پتہ چل سکے۔ تو یسایہ نبی کی کتاب جو ہے یہ پرانے عہد نامہ میں سب سے بڑی کتاب ہے، جس کے 66 باب ہیں اور 1292 اس کی آیات ہیں۔ یہ کتاب 83 سال میں لکھی گئی۔ تو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں زبور کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سب سے بڑی ہے، لیکن اس کی کتابیں 6 ہیں، تو 6 کتابوں میں جب تقسیم کیا جائے تو وہ چھوٹی کتاب، چھوٹی چھوٹی 6 ہیں۔ تو اسی طرح یسایہ کے روزے کی بنیادی، یسایہ کے روزے کی تعریف اور یسایہ نبی کی پیشن گوئیاں میں چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یسایہ نبی کے نام کے بائبل مقدس میں 4 آدمی ہیں جن کا نام یسایہ ہے۔ پہلا یسایہ پہلی تواریخ کی کتاب 3 باب 21 آیت میں لکھا ہے، وہ حنانیہ کا بیٹا یسایہ ہے۔ دوسرا یسایہ پہلی تواریخ کی کتاب 26 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، وہ رجیہ کا بیٹا یسایہ ہے۔ تیسرا یسایہ بنی مراری کا بیٹا ہے، وہ عزرا کی کتاب 8 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے۔ چوتھا یسایہ آموس کا بیٹا ہے، یسایہ کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جس نے 4 بادشاہوں کے درمیان 83 سال یسوع کی بنیادی کی، یسوع کے پیدا ہونے کی، یسوع کے مصلوب ہونے کی، یسوع کے روزے کی، اور بے شمار اس نے یسوع کے بارے پیشن گوئیاں کی۔ یسوع کی قبر بھی یسایہ نے یسوع کے پیدا ہونے سے 712 سال پہلے دیکھی۔ تو آج میں یسایہ کی کتاب میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یسایہ کی کتاب 50 باب اس کی 6 آیت میں یسایہ دیکھ رہا ہے اور یسایہ لکھ رہا ہے کہ یسوع روزے میں ہوگا، تو لوگ یسوع کی پیٹھ پر کوڑے ماریں گے، نازک بدن پر کوڑے لگائیں گے، یسوع کی داڑھی نوچیں گے، یسوع کے منہ پر تھوکیں گے، لیکن یسوع روزے میں ہوگا۔ یسوع آخری روزے میں ہوگا جب یہ واقعہ ہوگا۔ تو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دن یسوع کا 40واں روزہ تھا، جب یسوع کی داڑھی نوچی گئی، یسوع کے منہ پر تھوکا گیا، یسوع کے کپڑے اتارے گئے، یسوع کو قلعے میں جا کر کوڑوں سے مارا گیا۔ اسی طرح یسایہ کی کتاب 53 باب اس کی 5 سے 7 آیت دیکھیں تو یسایہ کہتا ہے یسوع کے پیدا ہونے سے 658 سال پہلے کہ یسوع روزے میں ہوگا تو ہماری بدکرداری اس پر لادی جائے گی، وہ ہمارے غموں کو برداشت کرے گا، اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں گے، ہماری خاطر اس پر سیاست ہوگی۔ لوگ اس کو ایسے پکڑ کر لے جائیں گے جیسے بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے، لیکن وہ خاموش رہے گا۔ یسایہ یسوع کا روزہ دیکھ رہا ہے کہ آخری روزے میں یسوع کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔
यीशु को कांटों का ताज पहनाया जाएगा और यीशु का रोजा होगा। यीशु को पानी की जगह सिरका पिलाया जाएगा और यीशु रोजे में होगा। जो सिरका यीशु को पिलाया गया उसके अंदर पत मिली हुई मै थी, वो बहुत कड़वी है। अंदरीन का पानी था जो बहुत कड़वा होता है। तो इसी तरह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु जब सलीब पर था तो रोजे में था। यीशु जब सलीब उठाकर सफर कर रहा था कलवरी की पहाड़ी के पास से, तो यीशु रोजे में था। यीशु बार बार गिरता है। 40 रोजे रखना कोई इंसान के लिए आसान काम नहीं। तो यीशु का आखिरी रोजा था तो लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। यीशु रोजे में था, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। यीशु रोजे में था, उसको मुक्के मारते थे और पूछते थे बता तुझे किसने मारा। यीशु रोजे में था तो यीशु के हाथ और पांव में कील ठोके गए। यीशु 40वें रोजे में था जब उसको सलीब पर लटकाया गया। तो यीशु 40 दिन का फाका करने के बाद सलीब पर लटक रहा है और लोगों के ताने मेने जुल्म सह रहे हैं। गम तो हमारे थे, बर्दाश्त वो कर रहा है। गुनाह हमारे थे, उठा यीशु रहा है। और कैसे? रोजे में। तो आज इसी तरह मैं यशाया नबी की दलेरी आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियो 10 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है यशाया बहुत दलेर नबी था। वो अंबिया अकबर था जिसने बेशुमार पेशनगोइयां की। तो आज हमें भी यशाया की किताब को समझने की जरूरत है। जब वो पेशनगोइयां करता था, नबूवत करता था, एक बादशाह था जिसका नाम मनस्सी था, वो यशाया नबी का दामाद था। उसको ये बात पसंद न आई, उसने यशाया नबी को आरे में चिरवा कर 2 हिस्से कर दिया। क्यों? कि वो रोजे की मनादी करता था। वो कहता था कि जब तुम रोजा रखते हो तो जताओ ना किसी को, रोजा रख के किसी पर तोहमत ना लगाओ, रोजा रख के किसी की ऐबजोई ना करो, रोजा रख के किसी को परेशान या अदास ना करो, रोजा रख के किसी को बदनाम ना करो कि मैंने रोजा रखा आपने क्यों नहीं रखा। ये यशाया कहता है। यशाया कहता है अगर तुम रोजा रखते हो तो रोजा रख के गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, ताकि आपकी आवाज आलमे बाला तक पहुंचे, आसमान पर पहुंचे। जब हम रोजा रखते हैं तो ईमानदार होने की जरूरत है, झूठ से नफरत करने की जरूरत है, बुत परस्ती छोड़ने की जरूरत है, नशेबाजों से लग रहने की जरूरत है। इसका मतलब है रोजा। तो यशाया कहता है रोजा रख के किसी पर जुल्म ना करो। ऐसा रोजा तुम रखते हो कि हम किसी के साथ झगड़ा रगड़ा करें और हम बताएं कि मैंने रोजा रखा है आपने नहीं रखा, मैंने रोजा रखा है आपने नहीं रखा। तो इसी तरह यीशु ने भी जब रोजा रखा था, उसका 40वां रोजा था, तो क्या हुआ? यीशु ने अपने दुश्मनों से कहा मैं अपनी ताकत तुम्हें दिखाना चाहता हूं लेकिन इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मेरे बाप पे पास आसमान पर 12 तुम्मल से ज्यादा फरिश्ते हैं। मैं अभी चाहूं तो मेरा बाप 12 तुम्मल से भी ज्यादा फरिश्ते भेज देगा। तो एक तुम्मल में 10,000 फरिश्ता होता है।
تو यशायाह कहता है जब असूरियों की लश्करगाह में एक ही फरिश्ता गया, यशायाह 37 बाब की 36 आयत में लिखा है, तो उसने 1,85,000 आदमी कत्ल कर दिया। अगर 1,20,000 फरिश्ते आ जाते तो क्या दुनिया बच सकती थी? कभी हो नहीं सकता। यसु ने अपनी रोजा रख के ताकत बताई लेकिन इस्तेमाल ना की। तो यीशु को जब पकड़वाया गया उस वक्त भी यीशु का रोजा था गतसमनी बाग में से। यीशु को जिस दिन पकड़वाया गया जुमेरात का दिन था, 1 अप्रैल की तारीख थी, सन 34, चौथा महीना था, जब यीशु को बाग में से गतसमनी बाग में से पकड़वाया गया और यीशु उस दिन भी रोजे में था। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जब यीशु ने 7 कलमे बोले, जैतून के पहाड़ पर बोले, तो यीशु उस वक्त भी रोजे में था। उस दिन भी यीशु का रोजा था। जुम्मे का दिन था, 2 तारीख थी, 2 अप्रैल थी। सुबह 6 बजे से 3 बजे तक रोजे के अयाम में रोजे के साथ यीशु सलीब पर लटका रहा। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यशायाह 53 बाब की 12 आयत में यशायाह ने यीशु के पैदा होने से पहले पेशन क्यों कर दी कि यीशु रोजे में होगा, यीशु सलीब पर होगा। तो वो कहेगा, ए बाप इनको माफ करके भी जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु ने रोजा रखे हुए सलीब पर हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारी बदकारी को उठा लिया, हमारे गुनाहों को उठा लिया। बाइबल में लिखा उसके मार खाने से हमने शफा पाई। तो आज भी अगर फतह है तो रोजे में है, सुकून है तो रोजे में है, इज्जत है तो रोजे में है, ईमानदारी है तो रोजे में है, परहेजगारी है तो रोजे में है, वफादारी है तो रोजे में है, सच्चाई है तो रोजे में है दीनदारी है तो रोजे में है। तो आज मैं आपके सामने ये यीशु के रोजे की तस्दीक करके बता रहा हूं कि इसकी पेशन गोई यशायाह ने की कि यीशु रोजे में होगा तो लोगों के गुनाह उठा लेगा। यीशु रोजे में होगा और सलीब पर होगा और कहेगा, ए बाप इनके गुनाह माफ कर। हम ऐसा रोजा रखें जो खुदा को पसंद है। आपने नैनवा शहर के लोगों का रोजा देखा है, जहां आग और गंधक की बारिश बरसने वाली थी। 1,20,000 से ज्यादा लोग हलाक होने वाले थे। जब उनको इल्म हो गया कि हम हलाक हो जाएंगे, उन्होंने एक दिल होकर, एक ईमान, एक ख्याल होकर बादशाह से लेकर फकीर तक, अमीर से लाकर गरीब तक रोजा रख दिया। तो उनका रोजा खुदा को पसंद आ गया, उनका रोजा आलमे बाला तक पहुंच गया और वहां 1,20,000 से ज्यादा लोग थे जिनको 40 दिन का चैलेंज था कि 40 दिन तक अपनी जिंदगी को बदल लो, तो बेहतर ना बदलोगे तो मैं आसमान से आग और गंधक की बारिश बरसाकर तुमको हलाक कर दूंगा। वहां बदकार लोग थे, जादूगर लोग थे, नशेबाज लोग थे, बुत परस्त लोग थे। सब ने अपने गुनाह को तर्क कर दिया, सब ने अपने गुनाह को मान लिया, सब ने अपने गुनाह को छोड़ दिया और तौबा कर ली। तो उनकी आवाज आलमे बाला तक पहुंच गई। जहां मौत की बारिश बरसनी थी, आग और गंधक की बारिश बरसनी थी, वहां जिंदगी की बारिश बरसनी शुरू हो गई। तो 1,20,000 लोग रोजा रख के बच गए और उन्हें खुदा का शुक्र किया। तो हमें भी रोजा रख कर ईमानदार होने की जरूरत है, वफादार होने की जरूरत है, दीनदार परहेजगार होने की जरूरत है।
تو خدا اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ شکر کرتا ہوں پیاری خداون، آج بھی تیرے نام میں فتح ہے، تیرے کلام میں فتح ہے، تیرے نام سے قدروں میں تھر تھراتی ہے، ابلیسی قوتیں بھاگ جاتی ہے، اندھوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ آج پوری دنیا کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، روزے کے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، روزہ رکھ کے عمل کرنے کی توفیق دے، جیسے نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا اور انہوں نے فتح مند زندگی حاصل کر کے تیرا شکر ادا کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی روزہ رکھ کے فتح مند زندگی میں داخل ہو کر تیرا شکر ادا کرنے کا موقع مل جائے، یسوع کے نام پر مانگتے ہیں۔